वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द accompanying figure shows some electrical appliances connected in a circuit in a house. Answer the following question. फर्स्ट है, by which method are the appliances connected? इसका आंसर है पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस? इसका आंसर है द सेम एज द सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट है, विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंसेस बी द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर है डिफरेंट इन जनरल। वी हैव I इक्वल टू V अपॉन R। इवन इफ द वोल्टेज V इज सेम, the resistance R can be different, hence the current I through each appliances may not be same. Next question, if the TV stop working, will the other appliances also stop working? Explain your answer. इसका आंसर है even if the TV stop working, other appliances will not stop working as they are connected in parallel across the supply. Second question, the following figure shows the symbol for component used in the accompanying electrical circuit. Place them at proper places and complete the circuit. यहाँ हमें डिफरेंट कंपोनेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है रेजिस्टर, सेकंड है बैटरी, थर्ड है एमीटर, फोर्थ है वोल्टमीटर, फिफ्थ है प्लग की एंड लास्ट है वेरिएबल रेजिस्टर। हमें इसे सर्किट में प्रॉपर प्लेस करना है और सर्किट कंप्लीट करना है। ओके, बैटरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से करंट फ्लो होगा। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं एमीटर, जिसका काम होता है करंट को मेज़र करना। ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। फिर हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। वोल्टमीटर को हम रेजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं, जिससे उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र किया जा सके। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर, इससे हम सर्किट में करंट के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम कनेक्ट करते हैं प्लग की, ये स्विच जिससे सर्किट ऑन ऑफ किया जाता है। विच लॉ कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ द अबव सर्किट? Ohm's law can be verified with the help of the above circuit. Ohm's law, the electric current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its terminal, provided the physical condition of the conductor such as its length, area of cross section, temperature and material remains constant. Next question. Umesh has two bulbs having resistance of 50 ohm and 30 ohm. He want to connect them in a circuit, but if he connect them one at a time, the filaments get burnt. Answer the following. Which method should he use to connect the bulb? Answer है, the bulb are connected in series. The effective resistance of the circuit increases and hence current through the bulb decreases. In this way, both the bulbs can be saved from burning. Next question, what are the characteristics of this way of connecting the bulbs depending on the answer of question A above? Following are the characteristics of series connection. First है, effective resistance of the circuit is the sum of individual resistance of the resistor present in the circuit. Effective resistance of the series circuit is always larger than the greatest resistance in the circuit. The same current flows through various electrical components connected in series. This arrangement is used to increase the resistance in a circuit. Next, what will be the effective resistance in the above circuit? The effective resistance in the circuit will be Rs equal to R1 plus R2. R1 दिया है 15 और R2 दिया है 30। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 45 ओम। So the effective resistance in the circuit is 45 ohm. Next question, the following table shows current in ampere and potential difference in volt. Find the average resistance. यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ दी गई है और हमें एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, यानी R इक्वल टू V अपॉन आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें एवरेज रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम R1 इक्वल टू V1 अपॉन I1, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0.44 ओम। वैसे ही हमें R2 कैलकुलेट करना है, यहाँ लिखेंगे R2 इक्वल टू V2 अपॉन I2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे
तो यहाँ मिलेगा हमें 0.44 ओम। वैसे ही R3 करना है, R3 इक्वल टू V3 अपॉन I3, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0.44 ओम। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखेंगे एवरेज रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3। तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1.32 अपॉन 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.44 ओम। So the average resistance is 0.44 ohm. Next question, what will be the nature of the graph between the current and potential difference? Do not draw a graph. अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे ही करंट भी सेम रेशो में बढ़ता है। तो इसका आंसर है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव? इसका आंसर है दिस ग्राफ प्रूव ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर है वीकली अटैच। करंट इसका आंसर है V अपॉन आर। रेजिस्टिविटी इसका आंसर है VA अपॉन LI। रेजिस्टेंस इन सीरीज इसका आंसर है इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। Next question, the resistance of a conductor of length x is R. If its area of cross section is A, what is its resistivity? What is its unit? In the usual notation, resistance का formula है R equal to rho L upon A. Therefore, rho equal to RA upon L, where rho equal to resistivity. तो एरिया हमें दिया है A, यहाँ लिखेंगे A, और लेंथ गिवन है x, यहाँ लिखेंगे x. तो रो इक्वल टू RA अपॉन x और इसका यूनिट है ओम मीटर। सेवेंथ क्वेश्चन, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 and R4 are connected as shown in the figure. S1 and S2 are two keys. Discuss the current flowing in the circuit in the following cases. First case है both S1 and S2 are closed. The current will flow through three resistance R1, R2 and R3. R1 and R2 in parallel, 1 upon Rp इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ मिलेगा Rp इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब R3 और Rp सीरीज में है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर Rs इक्वल टू R3 प्लस Rp। सो I इक्वल टू V अपॉन Rs. So I equal to V upon R3 plus Rp. Second case है both S1 and S2 are open. The current will flow through R1, R3 and R4. So Rs equal to R1 plus R3 plus R4. I equal to V upon R1 plus R3 plus R4. Third case है S1 is closed but S2 is open. Current will flow through R1, R2, R3 and R4. R1 और R2 पैरेलल में है, इसे सॉल्व करेंगे तो Rp की वैल्यू हमें मिलेंगी R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R2 प्लस R1। अब R3, R4 और Rp सीरीज में है, यहाँ लिखेंगे Rs इक्वल टू R3 प्लस R4 प्लस Rp। I इक्वल टू V अपॉन Rs, so I equal to V upon R3 plus R4 plus Rp. 8th question, three resistance X1, X2 and X3 are connected in a circuit in different ways. X is the effective resistance. The properties observed for these different ways of connecting X1, X2 and X3 are given below. Write the ways in which they are connected in each case. I current, V potential difference and X effective resistance. First है करंट I flows through X1, X2 and X3। इसका आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है X is larger than X1, X2 and X3। इसका भी आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट X is smaller than X1, X2 and X3। इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X1, X2 and X3 is the same। इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 9th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स।
फर्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओम. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will be its resistance be? गिवन लिख लेते हैं. L1 इक्वल टू 1 मीटर दिया है, L2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0.7 मीटर. R1 दिया हुआ है 6 ओम और R2 हमें फाइंड आउट करना है. इन द यूजुअल नोटेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो L अपॉन एरिया. तो यहाँ हम लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A and R2 equal to rho L2 upon A. Now the resistivity and area are same. We can write R2 upon R1 equal to L2 upon L1. अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. R2 हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे अपॉन R1 है 6, यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल टू L2 है 0.7 अपॉन L1 है 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. R2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4.2. तो R2 की वैल्यू हमें मिल रही है 4.2 ओम. Next question, when two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohm. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values of two resistance? Given लिखेंगे RS दिया हुआ है 80 ohm, RP दिया हुआ है 20 ohm और हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 80 ओम्स, इसे दे देंगे इक्वेशन 1. पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन 20 ओम्स. अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें R2 प्लस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 इक्वल टू 1 अपॉन 20 ओम्स. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ लिखेंगे RP इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R2 प्लस R1 इक्वल टू 20 ओम्स, इसे दे देंगे इक्वेशन 2. अब R1 प्लस R2 इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे हम R1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे R2 इक्वल टू 80 माइनस R1, इसे दे देंगे इक्वेशन 3. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. R1 एज इट इज, R2 के प्लेस पे लिखेंगे 80 माइनस R1 और R1 प्लस R2 कितना है 80, यहाँ लिखेंगे अपॉन 80 इक्वल टू 20 एज इट इज. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 मल्टीप्लाइड बाय 80 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 80 R1 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय R1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा R1 स्क्वायर इक्वल 80 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 80 R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 1600. अब हम इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस 80 R1 प्लस 1600 इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ऐसे दो नंबर देखना है जिनका प्रोडक्ट 1600 हो और सम माइनस 80. तो यहाँ -40 और -40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मिलेगा और -40 और -40 को ऐड करेंगे तो -80 मिलेगा. तो यहाँ लिखेंगे हम R1 स्क्वायर माइनस 80 R1 के प्लेस पे लिखेंगे -40 R1 -40 R1 प्लस 1600 एज इट इज इक्वल टू 0. अब ये दो नंबर में से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है? R1 कॉमन है, R1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 -40. यहाँ कॉमन -40 है, -40 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 -40 इक्वल टू 0. R1 -40 कॉमन है, एक बार लिखेंगे R1 -40, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे R1 -40 इक्वल टू 0. तो यहाँ हमें R1 की वैल्यू मिल रही है 40 ओम. अब हम इस इक्वेशन में R1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें R2 की वैल्यू मिलेंगी. यहाँ लिखेंगे R2 इक्वल टू 80 माइनस R1 और ये हमने कहाँ से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 3 से. यहाँ लिखेंगे 80 माइनस R1 के प्लेस पे लिखेंगे 40, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40. तो R2 की वैल्यू हमें मिल रही है 40 ओम. फाइनल आंसर लिखेंगे द टू रेजिस्टेंस आर 40 ओम एंड 40 ओम. Next question, if a charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? चार्ज हमें दिया है 420 कूलम, टाइम t दिया है 5 मिनट, मिनट में इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 300 सेकेंड. अब हमें करंट I फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला लिखेंगे I इक्वल टू Q अपॉन T, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 420 अपॉन 300,
इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1.4 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ करंट इज 1.4 एम्पियर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।